भारतीय रिजर्व बैंक ने आज रेपो रेट में कमी का ऐलान किया है। यह लगातार दूसरी बार है जब आरबीआई ने रेपो रेट में कटौती की है। आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा ने बुधवार को रेपो रेट में 25 बेसिस पॉइंट यानी 0.25% की कमी का ऐलान किया। उन्होंने बताया कि भारतीय रिजर्व बैंक की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की बैठक में सर्वसम्मति से रेपो रेट कम करने का फैसला लिया गया है। अब रेपो रेट 6.25% से घटकर 6% पर आ गई है। Of the evolving macroeconomic and financial conditions and outlook, the MPC voted unanimously to reduce the policy repo rate by 25 basis points to 6% with immediate effect. I repeat, the MPC voted unanimously to reduce the policy repo rate by 25 basis points to 6% with immediate effect. Consequently, the standing deposit facility, the SDF rate, under the liquidity adjustment facility shall stand adjusted to 5.75%, and the marginal standing facility rate or the MSF rate and the bank rate shall stand adjusted to 6.25%. रेपो रेट में कमी का सीधा असर लोन की ब्याज दरों पर होता है। आरबीआई की ओर से रेपो रेट कम करने से न केवल घर, गाड़ी या दूसरे कर्जों पर लगने वाला ब्याज कम होगा, यानी होम लोन और कार लोन की ईएमआई कम होगी, बल्कि इससे महंगाई पर भी लगाम लगेगी और ग्रोथ रेट में वृद्धि होगी। आरबीआई के फैसले से देशवासियों को बड़ी राहत मिलेगी और उनकी बचत में इजाफा होगा। इससे पहले इसी साल फरवरी में भी आरबीआई ने रेपो रेट में 25 आधार अंकों की कटौती की थी। आरबीआई गवर्नर ने यह भी बताया कि वित्त वर्ष 2025-26 में देश की जीडीपी वृद्धि दर 6.5% रहने की उम्मीद है। इससे पहले फरवरी महीने में इसके 6.7% रहने का अनुमान जताया गया था। आरबीआई गवर्नर ने इस कमी का कारण नीतिगत और व्यापार संबंधी वैश्विक अनिश्चितताओं को बताया है। उन्होंने ये भी कहा कि वित्त वर्ष 2025-26 की पहली तिमाही यानी अप्रैल-जून तिमाही में जीडीपी ग्रोथ 6.5%, जुलाई-सितंबर तिमाही में 6.7%, अक्टूबर-दिसंबर तिमाही में 6.6% और जनवरी-मार्च 2026 तिमाही में 6.3% रहने का अनुमान है। Headwinds from global trade disruptions continue to pose downward risks. Taking all these factors into consideration, real GDP is now projected for this fiscal 25-26 at 6.5%, with Q1 at 6.5%, Q2 at 6.7%, Q3 at 6.6%, and Q4 at 6.3%. While the risks are evenly balanced around these baseline projections, uncertainties remain high in the wake of recent spike in global volatility. You would have noted that the growth projection for the current year has been marked down by 20 basis points relative to our earlier assessment of 6.7% in the February policy. आरबीआई गवर्नर के मुताबिक वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए मुद्रास्फीति 4% रहने का अनुमान है। फरवरी में महंगाई दर 4.2% रहने का अनुमान लगाया गया था। आरबीआई के अनुसार वित्तीय वर्ष 2025-26 की पहली तिमाही में महंगाई दर 3.6%, दूसरी तिमाही में 3.9%, तीसरी तिमाही में 3.8% और चौथी तिमाही में 4.4% रहने का अनुमान है। आरबीआई गवर्नर ने दुनिया भर में चल रहे टैरिफ वार के कारण भारत में पैदा होने वाली संभावित परिस्थितियों का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि इससे विकास दर और महंगाई से जुड़ी नई चुनौतियां पैदा होने का जोखिम बढ़ गया है। देश के निर्यात पर भी इसका नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। On the implication of the recent global trade and related policy uncertainties are in order, let me first highlight the possible implications for growth. First and foremost, uncertainty in itself dampens growth by affecting investment and spending decisions both of businesses and households. Second, the dent on global growth due to trade frictions will also impede domestic growth. Third, higher tariffs shall have a negative impact on net exports. There are, however, I may say, several known unknowns. The impact of relative tariffs, our relative tariffs vis-a-vis some of the other countries are quite low. Then
there is the unknown of the elasticities of our export and import demand, and the policy measures adopted by us. You are all aware that India is very vigorously and proactively engaging with the US administration on the foreign trade agreement. These are just to name a few. These make the quantification of the adverse impact on growth difficult. The risks to inflation, on the other hand, are two-sided. On the upside, uncertainties may lead to a possible currency pressure and therefore imported inflation. On the downside, slowdown in global growth could entail further softening in commodity and crude oil prices, putting downward pressure on inflation. अमेरिकी टैरिफ की वजह से आर्थिक मोर्चे पर वैश्विक स्तर पर मची उथल-पुथल के बीच आरबीआई के रेपो रेट में कटौती के फैसले का बिजनेस जगत ने स्वागत किया है। आर्थिक विशेषज्ञों ने कहा है कि इससे आने वाले समय में लोगों के हाथ में अधिक पैसा होगा, जिससे खपत बढ़ेगी और कहीं न कहीं अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। देखिए, ये बहुत ही वेलकम न्यूज है और क्योंकि 25 बेसिस पॉइंट पहले बजट में हमको छूट मिली, इनकम टैक्स में रियायत मिली, तो उसकी वजह से कॉमन मैन के जेब में ज्यादा पैसा बचता था। उसके बाद तुरंत आरबीआई की जो मीट हुई, वहां पे 25 बेसिस पॉइंट कटौती की गई और आज फिर से 25 बेसिस पॉइंट की कटौती की गई। उसकी वजह से कॉस्ट ऑफ मनी जो है वो नीचे आ गई है। तो इश्यू ये है कि हमने देखा कि जनवरी से पहले इंडिया का हर मैक्रो और एवरीथिंग वाज इन प्लेस और अच्छा चल रहा था, लेकिन एक ही थोड़ा सा वरीसम पॉइंट था और वो था कंजम्पशन पिकअप नहीं हो रहा था या ग्रोथ नहीं वहां पे दिख रही थी। और कंजम्पशन को एड्रेस करने के लिए हमने यूनियन बजट में भी कदम उठाते हुए ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर को देखा और आरबीआई ने भी 2 टाइम लगातार जो है रेट कट अनाउंस करके उसको बढ़ावा दिया है। अब ये जो स्टेप्स है वो ओवरनाइट उसकी यू विल नॉट सी द इफेक्ट और द इम्पैक्ट कैन नॉट बी विजिबल ओवरनाइट। इसके लिए आपको 2 या 3 क्वार्टर देना पड़ेगा। जाहिर है कि पिछले सप्ताह अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर 26% पारस्परिक टैरिफ लगाने की घोषणा की थी। इसी के बाद से ही देश की अर्थव्यवस्था को लेकर तमाम सवाल उठाए जा रहे थे। देखा जाए तो आरबीआई ने रेपो रेट में कमी करके देशवासियों के विश्वास को बढ़ाने का काम किया है।